In the previous class, we have discussed the concept based on the probability distribution, mean of that probability distribution, variance and standard deviation of that probability distribution. We are starting with that question only. Probability distribution of some random variable is given to you. Probability distribution of some random variable is given to you. And the question is, you have to find out the value of k, you have to find out the mean, you have to find out the variance, you have to find out the standard deviation. क्वेश्चन में खास बात यहाँ पर ये दिखती है आपको कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, रैंडम वेरिएबल की अगर वैल्यूज को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो रैंडम वेरिएबल इज टेकिंग नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो. आपने ये बात ऑब्जर्व करी यहाँ पर -2, -1, 0, 1, 2, 3 रैंडम वेरिएबल इज टेकिंग द नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो. यस, इट कैन टेक, इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन. इसकी वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है. इट्स नॉट द प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी. But xi is the value of the random variable that could be negative. ठीक है. As far as value of k is concerned, to find out the value of k, you are directly going to calculate the sigma of pi equals to 1. Sigma of pi को 1 करिएगा, so that will be directly going to give you the value of k. k की value directly मिल जाएगी आपको 0.1 plus 0.2 plus 2k plus 0.3 plus k n is equals to 1, and you will be getting the value of k. What value you are getting for k? 1 by 10. It is becoming 0.1 plus 0.2, 0.3 plus 0.3, 0.6, and it is 1 minus 0.6, that will be 0.4, and it is becoming k plus 2k plus k, that is 4k. One by 10. So this is xi, this is pi, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. Value of pi, that value of pi is 0.1. 1 by 10 is again 0.1, then 0.2. k की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं अपन. फॉर 1 इट इज अगेन 0.2, 2 के करस्पॉन्डिंग इट इज 0.3, एंड इट इज k विच इज 0.1. राइट, ये xi pi. ठीक है, k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इजीली. टू फाइंड आउट द मीन और एक्सपेक्टेशन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट pi xi. xi pi summation of that is going to be equals to mean के बराबर होगा वो. तो माइनस ऑफ 0.2 माइनस ऑफ 0.1, इट इज 0, 0.2, 0.6 एंड 0.3. चेक करते जाइएगा प्लीज. टू कैलकुलेट द मीन इज नथिंग बट द सिग्मा ऑफ pi xi, and that value is coming as, बोले सर नेगेटिव है, होने दीजिए ना, कैंसिल हो रही टर्म. 0.6 plus 0.3, 0.9, और 0.9 minus 0.1, 0.8. then it is pi into xi square. So pi into xi square, this is pi xi square minus 2 का स्क्वायर होगा तो it will become 4, या pi xi is already there, minus 0.2 और xi से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो it will become 0.4, 0.1, 0, 0.2, 2 into 0.6, 1.2 and 0.9. Right? That is nothing but the sigma of, and we will be calculating the summation of that, sigma of pi into xi square, and it is coming as, what that value is coming as, 0.4 plus 0.1, 0.5 plus 0.2, 0.7, 2.8. okay, fine, 2.8. that is sigma of pi xi square. Now to calculate the variance, we are having the direct result with us. This is square of mean, 2.8 minus of
0.8 and square of that, tick, what is that coming as 2.16 is the value of variance. ये variance की value है, and to calculate the standard deviation you are going to take the square root of that variance, है ना. standard deviation की value calculate करने के लिए variance का square root. So all the values are with you. The point is random variable, yes it is a real valued function, its value can be negative, कोई दिक्कत नहीं. A reference book question: in a game a person is paid ₹10 if he gets all heads or all tails when 3 coins are tossed. He will pay ₹5 if either one or two head appears. What can he expect to win on the average per game? According to the question, 3 coins are tossed. If 3 heads or 3 tails appear, he will be getting ₹10. He is paid, he is getting 10 rupees. And if one head or two head appears, in that case, he will have to pay 5 rupees. Purely सट्टेबाजी वाली बात है. तो 10 रुपीज मिलने वाले कब? 3 कॉइन्स टॉस किए गए, 10 रुपीज तब मिलेंगे जब उसको तीनों हेड्स आते हैं या तीनों टेल्स आते हैं. और अदरवाइज ही विल हैव टू पे, उसको पे करना होंगे 5 रुपीज और उसकी एक्सपेक्टेशन रिक्वायर्ड है. एक सीधी सी बात है, देखो यहां पर रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या है ये समझना होगा अपने को. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल? उससे 10 रुपए मिलेंगे कब? जब उसे तीनों हेड्स या तीनों टेल्स आते हैं तब. और उसे 5 रुपए पे करना पड़ेंगे कब? जबकि अदरवाइज वाली बात है एक हेड आए या दो हेड आए. तो पॉइंट इज इफ आई राइट xi, xi is taking 2 values and those 2 values are, he will be getting 10 rupees है ना, and he will lose 5 rupees. तो he will lose 5 rupees, that means -5. उसके पास से 5 रुपए निकल जाएंगे. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 10 रुपए कब मिलेंगे उसे? ही इज गोइंग टू गेट 10 रुपीज व्हेन all 3 heads or all 3 tails, when 3 coins are tossed. What is the probability of that? तीनों heads या तीनों tails आने की probability अगर आपसे पूछा जाएगा तो it is clearly 2/8. तीनों heads और तीनों tails 2/8. Fine. And otherwise की बात हुई तो एक heads आए या दो heads आए तो सीधी सी बात है 6/8 फिर ना. सिग्मा ऑफ पी आई मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू 1, दैट इज 6/8. पूछा गया है कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, पर गेम कितना लूज करेगा या विन करेगा. तो इट इज नथिंग बट सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई. सिंपल. इसका मतलब है कि पर गेम उसकी जो एक्सपेक्टेशन आ रही है, जीतने के चांसेस कमी है, उसे लूज ही करना होंगे. सीधी सी बात है. -5/4 रुपीज पर गेम उसको लूज करना होंगे. ठीक है ना. दैट इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेशन. ये समझ में आया कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ढंग से, तो आप क्वेश्चन लैंग्वेज ही नहीं समझ पाए अपन तो गड़बड़ हो जाए. आता है हमें हाउ टू कैलकुलेट मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन अब क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम कहीं कंफ्यूज हो जाएं. तो अभी क्लियर है ना. ही इज गोइंग टू गेट 10 रुपीज व्हेन ही इज गेटिंग ऑल 3 हेड्स और ऑल 3 टेल्स, एंड ही इज गोइंग टू लूज 5 रुपीज. सो लूज किया इसलिए -5, और ही इज गोइंग टू गेन 10 रुपीज, सो इट इज +10. कब? जबकि अदरवाइज दैट मीन्स एक हेड्स आए या दो हेड्स आए, दैट इज गोइंग टू बी 6/8. एंड एक्सपेक्टेशन पर गेम रिक्वायर्ड है, तो एक्सपेक्टेशन इज कमिंग एज नेगेटिव. यस इट कुड बी नेगेटिव, कहीं कोई दिक्कत नहीं. वो लूज करेगा पर गेम, ऑन एन एवरेज जीतने वाला नहीं है वो. ठीक. टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात की जाती है, देखो कई सारी इवेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें जो आउटपुट्स होते हैं वो 2 ही आउटपुट्स होते हैं, या तो सक्सेस या फेलियर. देयर कुड बी सम इवेंट्स
डेफिनेटली सम इवेंट्स जहां पे केवल दो ही आउटपुट्स हैं, या तो सक्सेस है या फिर फेलियर है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं एक सिंगल कॉइन इज टॉस्ड, तो सिंगल कॉइन इज टॉस्ड तो हेड अपीयर्स और टेल अपीयर्स। अगर हेड्स का आना सक्सेस है तो हेड्स का नहीं आना फेलियर है। दो ही बातें पॉसिबल है यहाँ पर, या तो हेड्स आएगा या नहीं आएगा। सम इज क्लियरली वन, वो तो होगा। एक डाइस आपने थ्रो किया, डाइस थ्रो किया और सक्सेस अगर मैं कहता हूँ इफ गेटिंग अ नंबर 4 इज ए सक्सेस, गेटिंग अ नंबर 4 इज अ सक्सेस, तो गेटिंग अ नंबर which is not 4 is going to be a failure। 4 नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो फेलियर है। तो there are some events जिसमें दो ही आउटपुट्स आने वाले हैं, and those outputs are success or failures। That means if I say probability of that success is P and probability of that failure is Q, so P plus Q is nothing but 1। यही दो आउटपुट्स है। अब आपने कोई एक्सपेरिमेंट है, उसको 10 टाइम्स ट्रायल लिया, 10 टाइम्स आपने परफॉर्म किया। अब यहाँ पे जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाएगी, उसके लिए एक आवश्यक बात यह है कि आप 10 टाइम्स परफॉर्म करें या 100 टाइम्स परफॉर्म करें, हाँ इट मस्ट बी फाइनाइट टाइम्स। तो पॉइंट यह है एवरी टाइम बस यही दो पॉसिबिलिटीज होना चाहिए, आइदर सक्सेस और फेलियर, एंड देयर प्रोबेबिलिटी मस्ट आल्सो बी सेम। वो चेंज नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम में कुछ, फर्स्ट ट्रायल में कुछ अलग था, सेकंड ट्रायल में कुछ अलग है, थर्ड में कुछ अलग है। इट मस्ट बी सेम एवरीवेयर। कॉइन को अगर मैं टॉस कर रहा हूं 10 टाइम्स या 100 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड्स इज 1/2। दैट ऑलवेज रिमेन सेम, इंडिपेंडेंट इन नेचर। दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड हियर। पहली बात, आउटपुट्स दो ही आउटपुट्स होंगे, सक्सेस या फेलियर। दूसरी बात, उनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं दोज आर गोइंग टू रिमेन सेम, those are going to remain same and those events are independent in nature। वो events independent है। हर ट्रायल जब आप बात कर रहे हो, every time you are throwing a dice, every time you are throwing a coin, probabilities of getting a 4 remain same, 1/6, not getting a 4, 5/6, getting a heads 1/2, not getting a heads 1/2। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि there is a bag which contains 10 red balls and 5 white balls। अब मैं अगर यहां पे कहता हूं कि 1 ball is drawn out of that bag, उसका कलर देखा आपने, and again you replace that ball in the same bag and 10 times you are performing the same trial। 10 बार आपने वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो if I ask you the probability of I am getting देखो, if I ask you the probability of getting a red ball, single ball I am drawing from that bag, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड आप कहेंगे बड़ी आसानी सर 10c1 डिवाइडेड बाय 15c1, दैट इज नथिंग बट 10/15। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल इज नथिंग बट 5/15। सम इज क्लियरली 1, या तो रेड आएगी या व्हाइट आएगी। अगर मैं कहता हूं कि विथ रिप्लेसमेंट आई एम परफॉर्मिंग दिस टास्क, every time you are going to get the same probability of getting the red ball as well as white ball, same probability रहेगी, उसमें तो कोई change या variation नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए, so yes we can talk about this because those events are going to be independent in nature, but if I say कि मान लीजिए एक बॉल ड्रॉ करी मैंने and probability of getting a red ball and white ball that is this, उसको replace नहीं किया and उसको I have kept it at a side। अब रिप्लेस नहीं कर रहा हूं मैं, तो रिप्लेस नहीं करने पे फिर सैंपल स्पेस विल डेफिनेटली चेंज, एक बॉल कम हो गई उसमें से। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करूंगा, नेक्स्ट टाइम जब वो ट्रायल को परफॉर्म करूंगा, तो अगेन एक बार फिर से कम हो जाएगा। दैट मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी विल नॉट रिमेन सेम। इन दैट केस वी कैन नॉट टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या वो बर्नौलीज ट्रायल नहीं कहलाती हैं। उसको एक और दूसरा नाम है, जो ट्रायल्स, जिन ट्रायल्स के बारे में बात कर रहा हूं उन ट्रायल्स का दूसरा नाम भी है बर्नौलीज ट्रायल्स, है ना। जितना डिफिकल्ट इनकी टर्म लगेंगे ऐसा है नहीं, बहुत आसान है। ये जो हम बात कर रहे हैं बर्नौलीज ट्रायल्स की बात कर रहे हैं। हर ट्रायल में दोज आर फाइनाइट। सबसे पहली बात है दो नंबर ऑफ दोज ट्रायल्स मस्ट बी फाइनाइट। पहली बात, एवरी टाइम आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, पहली बात सक्सेस या फेलियर, दो बात के अलावा तीसरी बात नहीं हो पाएगी यहाँ पे। P plus Q must always be equals to 1
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मस्ट ऑल्सो बी सेम, इट शुड नॉट चेंज कि पहली बार में ये था दूसरी बार में ऐसा हो गया, वो नहीं होगा. एंड इवेंट्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट इन नेचर, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी हम बर्नौलीज ट्रायल कहेंगे. अब जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं आपसे कि एक सिंगल कॉइन है, अब सिंगल कॉइन है, उसको 5 टाइम्स मैंने टॉस किया या 4 टाइम्स, थोड़ा सा कम लेता हूं तो समझाने में ज्यादा आसानी होगी. और सिंगल कॉइन है, सिंगल कॉइन को मैं लगातार 4 बार उछाल रहा हूं मैं, है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड्स शायद समझाने की आवश्यकता नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड्स इज हाफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल्स इज हाफ. हेड्स को मैंने सक्सेस कहा और हेड्स नहीं आया उसको मैंने फेलियर कहा. ठीक है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और क्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है. ठीक है, 4 टाइम्स अ कॉइन इज टॉस्ड या 4 टाइम्स a coin is tossed. आपसे पूछा जाए 4 times a coin is tossed, single coin is there, is tossed. Find the probability of getting exactly 3 heads. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स. आपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते ही तुरंत समझ में आया कि ये बात जो है बर्नौलीज ट्रायल से, दीज आर सीधी सी बात है कि 4 टाइम्स ए कॉइन इज टॉस्ड, एवरी टाइम इट्स इंडिपेंडेंट इन नेचर. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड्स इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड्स इज 1/2. दोज आर फाइनाइट इन नंबर. 4 टाइम्स आप परफॉर्म कर रहे हो और आपसे पूछा गया है कि एग्जैक्टली 3 टाइम्स हेड ऑकर्स. हेड्स का आना मतलब मैं फिलहाल उसको सक्सेस से बता रहा हूँ, ये सक्सेस अगर लिख रहा हूँ यहाँ पर तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो कैलकुलेट करूंगा तो हाउ मेनी वेज आर देयर इफ आई जस्ट कैलकुलेट दैट, और फिर हम उसको फॉर्मूले के टर्म्स में लिख देंगे. सो कैसे लिखें हम, 4 बार आपने कॉइन टॉस किया है और एग्जैक्टली 3 टाइम्स हेड अपीयर्स, तो ऐसा हो सकता है 4 बार किया आपने, इंडिपेंडेंट है तो तय बात है, सक्सेस 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 एंड अ फेलियर, एग्जैक्टली 3 टाइम्स हेड ऑकर्स. ये एक पॉसिबिलिटी होगी, जरूर होगी. पहली 3 बार में हेड्स आ गया, चौथी बार में नहीं आया, फाइन. फर्स्ट 2 टाइम्स हेड अपीयर्स, थर्ड टाइम में हेड्स नहीं आना और फिर हेड्स का आना. ठीक है, ठीक है. एंड और कुछ केस, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है. ठीक है ना. सो सक्सेस, 3 टाइम्स सक्सेस एंड फेलियर. अब यार एक सीधी सी बात है, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, हाउ टू राइट दिस, कैसे लिखोगे, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2. इनफैक्ट तो इसको मैं एक्चुअल में थोड़ा सा अलग बताने के लिए कि 3 टाइम्स है इंटू 1/2, it is also going to be 3 times success and 1 time is failure. And how many ways are there? There are 4 ways there. आप क्या करेंगे, कैसे हो सकता है, तो इन चारों को ऐड कर देंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स है ना, तो एवरी टाइम इट इज गोइंग टू बी सेम. ठीक है, तो इन चारों को जब आप बिट करोगे तो 4 टाइम्स होगा. इनफैक्ट इट इज रिटन एज 4c3 1/2 and 1/2 raised to power 3 and 1/2 raised to power 4 minus 3. चारों का सम 4 times 4c3 is nothing but 4, right? तो 4c3 1/2 raised to power 3 into 1/2 raised to power 1, तो 1 मतलब क्या, 4 minus 3. That is nothing but the probability of getting exactly 3 heads when 4 coins are tossed.
आ रही क्या बात समझ में? ठीक है ना। मैं इसको अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख के बताता हूं और क्या फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं उसकी भी बात करता हूं मैं, ठीक है ना। तो यहां तक तो क्लियर है बात आपको? ये एग्जांपल मैंने केवल इसलिए दिया था कि आपको ये बताने के लिए कि सैंपल स्पेस चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर मस्ट ऑलवेज बी सेम, इट शुड नॉट चेंज इन एवरी ट्रायल, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया एग्जैक्ट 3 हेड्स। अगर मैं आपसे पूछता ये एक्चुअल में क्या हो गया, x इक्वस टू 3, x इक्वस टू 3 का मतलब क्या हुआ, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 अर्थात 3 हेड्स, ठीक। एंड लाइकवाइज इफ आई टॉक अबाउट x equals to 4, what do you mean by that x equals to 4? If I talk about x equals to 4, x equals to 4, that means all 4 times head appears, समझ गए ना। तो all 4 times head appears, how you are going to write that? तो all 4 times, ऐसे कितने केस होंगे? There is only one case there, एकमात्र केस है कि चारों हेड्स आ जाए, सक्सेस 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 एंड सक्सेस, हेड्स को आने को मैं सक्सेस बोल रहा हूं मैं, राइट। तो there is a single case there, probability of success is 1 by 2 only, there is a single case you are going to write, in fact that is going to be 4C4, 4 times आपने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया एंड एवरी टाइम यू आर गेटिंग, चारों बार हेड्स का आना, 4C4, 1 by 2 raised to power 4, 1 by 2 raised to power 4 minus 4, that is nothing but 0। आ रही बात समझ में? इफ आई से x इक्वल्स टू 4 हो गया, 3 हो गया, 2 को देखें आप, इफ आई से 2, तो 2 अगेन यू आर गोइंग टू फॉर्म केसेस, एग्जैक्टली 2 हेड्स अपीयर्स, सो एग्जैक्टली 2 हेड अपीयर्स, अगेन यू आर गोइंग टू फॉर्म केसेस, जैसे मैंने यहां पे बनाए थे ना ये। आई होप ये बात समझ में आती है आपको। सो हाउ मेनी केसेस वुड बी देयर, आप बार बार कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 4C2, 1 by 2 raised to power 2 and 1 by 2 raised to power 4 minus 2, x equals to 1 and x equals to 1, if I write there x equals to 1, it is going to be 4C1, 1 by 2 raised to power 1 and 1 by 2 raised to power 3, x equals to 0, एक भी हेड्स नहीं आना, एक भी हेड्स नहीं आना मतलब सारे टेल्स ही आना है ना। एक सिंगल केस इज देयर, 4C0, 4C0 की वैल्यू 4C0 की वैल्यू 1, सो 1 by 2 raised to power 0 and 1 by 2 raised to power 4 minus 0 which is 4। तो probability distribution of that has to be written, तो ये हमने सारी बातें लिख दी, x equals to 3, x equals to 4, 2, 1, 0, और इसी बात को अगर मैं लिखता हूं, यहीं पर लिखता हूं मैं, ये ट्रायल्स का नाम दिया था मैंने आपको, नाम मैंने नहीं दिया, मतलब जिसने दिया होगा 200 साल पहले या 300 साल पहले, बर्नौलीज ट्रायल करके। तो x इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, भाई 4 टाइम्स आपने कॉइन को टॉस किया है, 4 कॉइन को टॉस किया है, गेटिंग अ हेड्स इज अ सक्सेस, ठीक है, नॉट गेटिंग अ हेड इज अ फेलियर। 4 टाइम्स टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा, तो दैट रैंडम वेरिएबल इज गोइंग टू टेक 5 वैल्यूज, एक भी हेड्स का नहीं आना। x इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स व्हाट, गेटिंग 0 हेड्स, एक भी हेड्स नहीं आए, एक हेड्स का आना, 2 हेड्स का आना, 3 हेड्स का आना, चारों हेड्स का आना, यही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। दीज आर गोइंग टू बी द वैल्यूज ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल, एंड टू राइट दैट मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे 4C0, 1 by 2 raised to power 0,
right? That is nothing but the probability distribution of getting the number of heads when 4 coins are tossed. ठीक है, that is the probability distribution. और एक और मजेदार बात अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसमें, तो if I add all 5, अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ, in that case क्वेश्चन आपको नोट करवा दूंगा अलग से. क्वेश्चन मैंने काफी कुछ चेंज कर दिया एक्चुअल में. इफ आई एड ऑल दीज 4 as we have discussed already, we have discussed here that probability, if your probability distribution is correct, then sigma of pi must always be equals to 1. उसकी वैल्यू 1 होना चाहिए. तो इन सबको जब आप ऐड करोगे 4c0 1 by 2 raised to power 0 1 by 2 raised to power 4 4c1, इन सबको जब आप ऐड करोगे दोस्तों, इट इज गोइंग टू बिकम, अब इसको अगर मैं जनरलाइज करना चाहूं तो जनरलाइज भी कर सकता हूं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ, इफ यू रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. बाइनोमियल थ्योरम जो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, और क्लास 11th में जब पढ़ाया जाता है तो a प्लस एक्स रेस टू पावर n, a प्लस एक्स रेस टू पावर n जब लिखा जाता है, दैट इज फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, जब आप लिखते हैं a प्लस एक्स टू द पावर n, nc0 a रेस टू पावर n x रेस टू पावर 0 n प्लस nc1 a रेस टू पावर n माइनस 1 इंटू x रेस टू पावर 1, nc2 a रेस टू पावर n माइनस 2 x स्क्वायर एंड अप टू ncn a रेस टू पावर 0 x रेस टू पावर n. कुछ गलत तो नहीं बोला? बोले आपने बोले हमने सुना ही नहीं इस टाइप से, कुछ ऐसा तो नहीं ना? सुना तो सभी ने है, काफी ठीक ठाक ढंग से सुना हुआ है. इट इज इनफैक्ट बिकमिंग, it is becoming p plus q, and 4 times आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया p plus q रेस टू पावर 4. इस ढंग से लिख सकते हैं आप इसको, गेटिंग ऑल 4 हेड्स, गेटिंग 3 हेड्स, समेशन करोगे वही बात है. दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग 1. तो इसीलिए इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है. व्हाइट्स नेम इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लिखने वाले हैं, बिकॉज ऑफ दिस ओनली. अब हम इसको जो कुछ कहा गया है उसको सिंपल उसमें समझा दें. ये जो मैंने आपको लिख के बताया था, दैट वाज p ऑफ x 4 टाइम्स कॉइन टॉस्ड, और अभी जो मैंने लिख दिया एक्चुअल में, ये तो मैंने आपको x इक्वल टू 3 समझाया, लेकिन आई हैव रिटन 3 4 2 1 0. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, आप क्या करेंगे पहले इसको नोट कीजिए, एंड देन अगेन आई एक्सप्लेन, एंड इट्स वेरी इजी, बहुत आसान होगा ये. क्वेश्चन इज अबाउट 4 coins are tossed, 4 coins are tossed and you have to write the probability distribution of number of heads. एक और बात अगर आपने ऑब्जर्व करी हो तो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. प्रीवियस क्लास की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है. हमने यहाँ पर भी तो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही लिख दिया एक तरीके से, लेकिन अलग ढंग से एक्सप्लेन करते हुए. द रीजन इज, जितने भी टाइम्स आप 4 टाइम्स अ कॉइन इज टॉस, तो 4 टाइम्स उस ट्रायल को, उस एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म कर रहे हैं. सक्सेस और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो सेम है. इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, दोज आर फाइनाइट इन नंबर. हमने डायरेक्टली बात करी कि जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता x इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स. तो इफ आई टॉक अबाउट एग्जैक्टली 3 हेड्स, तो एग्जैक्टली 3 हेड्स, इनफैक्ट दीज आर द 4 केसेस देयर. ये 4 केसेस पॉसिबल थे, सक्सेस 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 एंड फेलियर, एंड द सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन इंडिपेंडेंट इन नेचर एंड प्रोबेबिलिटीज आर सेम. सो 1/2 क्यूब इंटू 1/2 एंड लाइकवाइज इट इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स. इसको हमने जनरलाइज किया. कैसे किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स इज 4c3 1/2 रेज़ टू पावर 3 1/2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 3. मेरे ऐसा लिखने से फायदा क्या सर? अभी उसको हम जनरलाइज कर देंगे. विल बी डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ n एंड r. ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया कि 4 टाइम्स, 4 क्या 40 टाइम्स कर लो आप.
और 400 टाइम्स कर लो, कोई परेशानी नहीं है। x इक्वल्स टू 4 दैट मीन्स गेटिंग ऑल 4 हेड्स, तो ऑल 4 हेड्स देयर इज अ सिंगल केस देयर, चारों हेड्स आ रहे हैं, h h h h, जिसको सक्सेस 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 एंड सक्सेस, that is a single case, that is in fact is nothing but 4 times a coin is tossed and all 4 times 4c4, 1 by 2 raised to power 4, 1 by 2 raised to power 4 minus 4, फिर x equals to 2 likewise, 2 heads और 2 tails, there are going to be 6 cases there, अब बना के देखेंगे, you'll be getting that, x equals to 1 getting a single heads and x equals to 0 not getting a single head, चारों tails आ जाएं, एक ही केस होगा वो भी। How to write that? 4c0, 1 by 2 raised to power 0, 1 by 2 raised to power 4. So again we talk about that binomial distribution. Success, probability of success. P, probability of failure is Q, and p plus q must be equals to 1, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। These are the only two possibilities there. अभी जो लिखा था हमने उसको अगर मैं जनरलाइज करूं that means if n times a trial is performed, है ना, n times is performed, and probability of exactly R success out of n टाइम्स आपने कोई ट्रायल परफॉर्म की है और आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेस आउट ऑफ n, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। कैसे डायरेक्टली बात कर सकते हो? आपने ऑब्जर्व किया कि ओके जो ट्रायल्स परफॉर्म की गई हैं दोज आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, दोज आर हैविंग ओनली टू आउटकम्स देयर, सक्सेस और फेलियर, देयर प्रोबेबिलिटीज आर ऑलवेज गोइंग टू रिमेन सेम। You want exactly R success out of n, you can directly write in fact NCR P raised to power R and Q raised to power n minus R. That is nothing but NCR P raised to power R Q raised to power n minus R. यही तो किया था हमने. We have written x equals to 3, x equals to 2, x equals to 1, x equals to 0, x equals to 4. What was that? यही तो लिखा था हमने. I have given you the explanation, clear cut explanation कि कैसे लिख दिया. Why you are getting these 4 cases? कैसे आ गया? क्यों multiplication? Directly NCR P raised to power R Q raised to power n minus R. And in fact, if you think over binomial theorem, थोड़ा सा सोच समझ के अगर आप बात करें, if you just observe the P plus Q raised to power n, तो P plus Q raised to power n जब लिखा जाता है तो that P plus Q raised to power n, that is written in fact as NC0 P raised to power n Q raised to power 0 NC1, या एक भी सक्सेस नहीं तो इट इज गोइंग टू बी, ठीक है, NC0. अगर NC0 कह रहा हूं मतलब एक भी टाइम नहीं होना, मतलब इट इज गोइंग टू बी P raised to power 0 Q raised to power n. बात वही रहेगी आगे पीछे घूम के. NC1 P raised to power 1 Q raised to power n minus 1. NCn P raised to power n and Q raised to power 0. ये उन्हीं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो लिखा था x equals to 0, x equals to 1, x equals to 2, x equals to 3, x equals to n, and it is nothing but the summation of that. ये उसका समेशन है. x equals to 0, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, x equals to 0, एक भी सक्सेस नहीं, NC0 आउट ऑफ n ट्रायल्स एक भी सक्सेस नहीं, NC0 P raised to power 0 और सारी फेलियर्स हैं Q raised to power n, मल्टीप्लीकेशन बिकॉज इंडिपेंडेंट इन नेचर. एक सक्सेस दैट इज P x equals to 0, x equals to 1, x equals to 2 and x equals to n. And what we are writing here, NCR P raised to power R Q raised to power n minus R is nothing but the general term of P plus Q raised to power n. If you have heard about the concept of general term,
है ना, जब आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं तो विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म ओनली यू आर फाइंडिंग आउट द पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करते हैं या मिडिल टर्म फाइंड आउट करते हैं, काफ़ी सारी बातें और जो आप करते हैं दैट इज थ्रू जनरल टर्म ओनली, राइट। तो ओके ठीक है, इट इज एनसीआर पी रेस टू पावर आर क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और दूंगा, बहुत आसानी से समझेंगे आप कि 10 टाइम्स a die is thrown, so 10 times a die is thrown, getting a 4 is success। जरूरी नहीं लिखे वो, है ना, कि सक्सेस और फेलियर, इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट इट शुड बी मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम। 10 times a die is thrown, find the probability of exactly 8 times 4 occurs। 10 times a die is thrown, or find the probability of exactly 8 times 4 occurs। तो एक डाइस को थ्रो किया गया है, सिंगल डाइस थ्रोन 10 times, every time probability of getting a 4 it remains same, that is nothing but 1/6, and probability of not getting a 4 is always 5/6। 10 बार फेंको या 1000 बार फेंको, that is always going to remain same, ठीक है ना। तो probability of getting 4 is 1/6 and probability of not getting a 4 is 5/6। what we want exactly 8 times, अब exactly 8 times हमें कोई लोड नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे, we are going to write here 10C8 1/6 raised to power 8 and 5/6 raised to power 2। exactly 8 times 4 occurs, तो इसका मतलब है कि दो बचे हुए 2 बार हैं, उस समय 4 नहीं आएगा। तो 10C8 1/6 raised to power 8 5/6 raised to power 2, खत्म। आ रहा है समझ में कैसे? ऐसे NCR P raised to power R Q raised to power n minus R, ऐसा नहीं लिखेगा यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ बर्नौलीज ट्रायल्स या यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आप डायरेक्ट देखोगे अरे यार या तो 4 आएगा या नहीं आएगा। इफ द क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 8 times 4 occurs, at least 8 times 4 occurs, we want the probability of that। a single die is thrown, पहले समझ लीजिएगा, at least 8 times, at least 8 times, what do you mean by that? at least 8 times, so at least 8 times में 8 times at least 8, कम से कम 8 बार, 8 9 and 10, सारी 10 बार आए, कोई परेशानी नहीं है। सो दैट इज नथिंग बट x equals to 8, x equals to 9 and x equals to 10। you are going to write the summation of these three and it is nothing but 10 times परफॉर्म कर रहे हैं और एटलीस्ट 8 times। 10C8 1/6 raised to power 8 5/6 raised to power 2। 10C9 1/6 raised to power 9 5/6 raised to power 1। 10C10 right, that is nothing but the result। सॉल्व कर सकते हैं तो कर देंगे, हो जाएगा सॉल्व, जिस टर्म में पूछा गया है लिख देंगे आप, राइट। प्लीज नोट डाउन नाउ द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, 10 times और die is thrown, getting a 4 is a success, और आपसे कहा गया है एटमोस्ट
3 times 4 occurs. So at most 3 times. The at most 3 times for maximum 3 बार head 4 आना. Getting a 4 is clearly probability of getting a 4 is 1 by 6 and not getting a 4 is 5 by 6. At most 3 times, maximum 3 times. 3 times हो सकता है, 2 times हो सकता है, 1 time हो सकता है, या एक बार भी 0 नहीं, एक बार भी 4 नहीं है, right? x equals to 3, x equals to 2, x equals to 1 and x equals to 0. How to write that? 10 times है ना, 10 times उस ट्रायल को परफॉर्म किया है. 10c3 1 by 6 raised to power 3, 5 by 6 raised to power 7, 10c2 1 by 6 whole square, 5 by 6 raised to power 8, राइट. आई थिंक शायद सभी लोगों ने ये लिखा है. अगर मान लीजिए कहा जाता है एट मोस्ट 9 times 4 occurs, एट मोस्ट 9 times 4 occurs. बोले सर क्यों परेशान कर रहे हो आप? एट मोस्ट 9 times, तो 9 times 8 times 7 times 6 5 4 3 2 1 0. लेकिन बेहतर होगा, yes, instead of going for summation of that, we'll be going for 1 minus what? 1 minus what should we subtract from 1 to get that probability? At most 9 times, maximum 9 times. एक ही केस हमें नहीं चाहिए, कौन सा? 10 वाला हटा दो. तो ऐसा भी कई बार करना होगा आपको. 1 minus of 10c10, all 10 times 4 occurs, 1 by 6 raised to power 10 and 5 by 6 raised to power 0. ठीक है ना? तो ऐसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप सीखोगे, समझोगे. जब 1 माइनस वाली बात है तो 1 माइनस तरीके से कर दोगे. Now look for a simple question. If the chance that a ship arrives safely at a port is 9 by 10, chance that a ship arrives safely at a port is 9 by 10, find the chance that out of 5 expected ships, at least 4 will arrive safely at the port. तो सिंपल सी बात है, जहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात लगती नहीं है. चांस दैट अ शिप अराइव सेफली एट अ पोर्ट इज 9 by 10. That is 9 by 10. Probability that ship is arriving the port safely 9 by 10. इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ गड़बड़ हो, उस बात की probability 1 by 10. दो ही बातें हैं, या तो सेफली अराइव होगा या नहीं हो पाएगा. P plus Q must always be equals to 1. क्वेश्चन में नहीं लिखेगा ये using the concept of that binomial distribution. No discussion. Last row. तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, ये आपको लैंग्वेज को देख के समझना होगा कि सेफली अराइव हो रहा है उस बात की प्रोबेबिलिटी 9 by 10, तो सेफली अराइव ना हो उस बात की प्रोबेबिलिटी 1 by 10. क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 एक्सपेक्टेड शिप्स एटलीस्ट 4 विल अराइव सेफली एट द पोर्ट. 5 में से कम 4 सेफली अराइव होंगे. एटलीस्ट 4 आउट ऑफ 5. At least 4 out of 5 will arrive safely. So at least 4 out of 5, 4 as well as 5, 4 ships safely arrive और 5 ships
सेफली अराइव हो। 5C4 बहुत आसानी से लिखा होगा, आपने लिख देना चाहिए था 5C4 सेफली अराइव होने की प्रोबेबिलिटी 9/10 रेज़ टू पावर 4 इंटू 1/10 रेज़ टू पावर 1 प्लस 5C5 9/10 रेज़ टू पावर 5 1/10 रेज़ टू पावर 0। ठीक है, बोले सर फर्दर सॉल्व करना पड़ता है क्या इसमें? जहां तक जो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। कई बार जब बहुत ट्रिकी सा या टीडियस हो जाए तो उस केस में आप लीव द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एनसीआर वाली बात भी होती है, उसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर सॉल्व हो पा रहा है, जैसे 5C4 व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ 5C4 इज इक्वल टू 5C1 इज 5, तो जैसे 5 इंटू 9/10, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कब तक सॉल्व करने वाली बात है, तो कर सकते हैं तो कर दीजिए। 5C5 इज नथिंग बट 1, 9/10 रेज़ टू पावर 5। अब आप एग्जाम में बैठ के 5C4 ही कैलकुलेट कर रहे हो तो परेशान हो जाओगे, फिर एनसीआर ही निकाल रहे हो आप 5C4, वो मत करिएगा, फिर वो दिक्कत वाली बात है, अच्छा नहीं लगेगा। इट विल बिकम इनफैक्ट 9/10 रेज़ टू पावर 4 को आपने कॉमन लिया, मैं आपको केवल सॉल्व करना बता रहा हूँ यार। ये 5/10 दैट विल बी 1/2 प्लस 9/10, इतना बता दीजिए आप उसको सॉल्व करके, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। नाउ प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन, numbers are selected at random one at a time from the numbers, so numbers are selected at random one at a time from the numbers and those 100 numbers are there in fact, so numbers are selected at random one at a time from these numbers 100 numbers with replacement, fine. An event E occurs if and only if the product of two digits of a selected number is 18। इवेंट कब आती है उसका कहना है, an event E occurs if and only if the product of the two digits of a selected number is 18। पहले तो इसी की बात कर लें। The question is, if four numbers are selected, find the probability that event occurs at least 3 times। If 4 numbers are selected, find the probability that event occurs at least 3 times। सबसे पहली बात तो ये कि event occurs if and only if product of two digits of a selected number is 18। So what is the probability of that occurrence of that event? है ना, product of two digits of selected number is 18। how many cases are there in fact जबकि product 18 होगा? 4, कौन से 4? 29, 92, 36, 63, बस। क्यों, ये भी तो होगा 18 और 81। प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड इज 18 है ना, तो प्रोडक्ट कई बार क्या होता है गलत फहमी, प्रोडक्ट इज 18 में और नंबर 18 तो आ ही जाता है, तो ये नहीं करने का। ठीक है, आप लोग ठीक सोच रहे हैं। दीज आर द 4 नंबर्स वेयर प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट्स इज 18 एंड क्लियरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज 4/100। उसको मैंने P से डिनोट किया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ दैट इवेंट, उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दैट विल बी Q से अगर मैं डिनोट करता हूं तो 4/100 या 1/25, सो 24/25, राइट। 4/100, 1/25, so 24/25, फाइन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रिक्वायरमेंट इज ऑफ 4 numbers are selected। आप क्या चाहते हो? दैट इवेंट ऑकर्स एटलीस्ट 3 टाइम्स। जो आपने 4 नंबर सिलेक्ट किए हैं, आपने 4 नंबर सिलेक्ट किए, उन 4 नंबर्स में 4 नंबर सिलेक्टेड है ना, प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ऑकर्स एटलीस्ट 3 टाइम्स, 4 में से कम 3 नंबर्स ऐसे हों जिनमें डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 हो। एक बात तो बहुत आसानी से समझ में आती है
कि इस बात की प्रोबेबिलिटी काफी कम आने वाली है ना, कि 4 नंबर आपने सिलेक्ट किए एंड यू वांट दैट एटलीस्ट 3 आर देयर जिनमें डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 हो। खैर कैसे लिखेंगे? फोर नंबर्स आर सिलेक्टेड, 4C3, 4 नंबर सिलेक्ट किए, 4 में से 3 कम से कम 3, तो 3 वाला केस 4C3, 1/25 raised to power 3 and 24/25 raised to power 1 प्लस 4C4, चारों ही नंबर वैसे हो जाए जहां पे डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 हो। 4C4 1/25 raised to power 4 and 24/25 raised to power 0. It is nothing but, कैलकुलेट करना चाहें कर सकते हैं, 4C31 is equals to 4C3 is equals to 4C1 which is 4 into you can take 1/25 raised to power 3 common and you can solve that. कर सकते हैं ना? पर क्वेश्चन समझ में तो आए हो क्या रहा है, आपको ये भी समझ में आना चाहिए। लिखेगा नहीं वो यूजिंग दिस कंसेप्ट, अभी तो आप पढ़ रहे हो और उसके साथ में अप्लाई कर रहे हो तो बात आसानी से समझ में आ जाती है। अदरवाइज वो बात क्लिक करना चाहिए प्रॉपर टाइम पे यार, कि उसमें थोड़े ना लिखा है यूजिंग दिस कंसेप्ट। आउट ऑफ दोस 4 नंबर्स एटलीस्ट 3 times that event occurs. Now look for a different question. That's a previous year triple E question 2009. Just now we have discussed that product of the digits is coming as 18. So based on that, but of a different concept. The question is, one ticket is selected at random from 50 tickets and those 50 tickets are numbered from 00, 01, 02 and 49. One ticket is selected at random from these 50 tickets और ये tickets के ऊपर numbering है. Then the probability that the sum of digits on the selected ticket is 8. Question क्या है? Then the probability that the sum of digits on the selected ticket is 8, given that product of these digits is 0. बीच में मैंने क्वेश्चन डाल दिया क्योंकि वो डिजिट्स का प्रोडक्ट की बात आई थी, उसी को देखते हुए। Probability that the sum of digits on the selected ticket is 8, given that the product of the digits is 0. It's a question based on conditional probability. आपको क्वेश्चन ये थोड़े ना लिखेगा कि यूजिंग दिस कंसेप्ट और दैट कंसेप्ट, ये आपको देखना है। गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ दिस डिजिट्स इज 0, क्या चाहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 8। कब? जबकि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स zero. That's a previous year triple E question. So yes, we are aware of P of A by B लिखना होता है, तो that P of A by B is nothing but P of A intersection B upon P of B. कोई खास बात नहीं। So product of digits is 0. How many digits are there? How many numbers are there in fact? जहाँ पे product of digits 0 होगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि जो डिजिट्स के ऊपर नंबरिंग है ना, 00 से लेकर 10 तो हो गया है ना, तो ये टोटल कितने हो गए? 00 से लेकर 10, 11 हो गई है। एंड देन डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 0, तो डिजिट्स का प्रोडक्ट 0। अच्छा, डिजिट्स का प्रोडक्ट 0 और भी जगह बनेगा, 10, 20, 30, 40। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स 0, और कहीं नहीं हो पाएगा, पक्का? ओके। सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 14 नंबर्स। अब वो क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि भाई सम ऑफ डिजिट्स 8 हो। ऐसे कितने केसेस हैं? सम ऑफ डिजिट्स 8, देयर इज अ सिंगल केस देयर, 08,
एकमात्र केस है 08। वन बाय 14। Again a previous year triple E question. In a binomial distribution, with p equals to 1 by 4 and n is the number of trials there, if probability of at least one success is greater than or equals to 9 by 10, then n is greater than, and some 4 options are provided to you. Probability of at least one success is greater than or equals to 9 by 10, and then n is greater than. Some 4 options are there, those are there in terms of log. देखते हैं अब when value of p is equals to 1 by 4 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, तो बिना कोई डाउट के आप q की वैल्यू 3 by 4 लिखेंगे, वो तो होगा एटलीस्ट वन सक्सेस, कम से कम एक सक्सेस, और n ट्रायल्स की बात कर रहा है, तो 1 2 3 4 एंड अप टू n दैट वी कैन नॉट कैलकुलेट, विल डेफिनेटली हैव टू थिंक अबाउट 1 माइनस ऑफ, कम से कम एक सक्सेस, एक या एक से ज्यादा, विल बी वन टेकिंग 1 माइनस ऑफ एक भी सक्सेस नहीं, right? It is nothing but 1 minus of x equals to 0. How to write that x equals to 0? एक भी सक्सेस नहीं, NC 0. 1 by 4 is to power 0. 3 by 4 is to power n. Right? As far as value of NC0 is concerned is 1. 1 by 4 is to power 0 is 1. ठीक, so 3 by 4 raised to power n is less than equals to 3 by 4 raised to power n 1 minus 9 by 10, तो 1 minus 9 by 10 1 by 10 लिख सकते हैं. 3 by 4 raised to power n is less than equals to 1 by 10. Result is there in terms of log. Fine, ठीक है. 3 by 4 raised to power n less than equals to 1 by 10 will be taking log with base 10. We have started with the concepts of log only. Log base 10 लेते हैं. फाइन. कोई इनइक्वालिटी में रिवर्सल तो नहीं होगा? इनइक्वालिटी में रिवर्सल क्यों नहीं होगा? बेस इज 10 विच इज ग्रेटर देन 1, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है. इफ यू टेक लॉग विद बेस in between 0 and 1, you will have to change the inequality, right? 3 by 4 raised to power n, it is n times. Then equals to log m by n, या 10 to the power minus 1 करके लिखो, या log m by n, log 1 minus log 10, log 1 is 0, log 10 with base 10 1, minus 1 लिख दें. Fine. So n is less than equals to एक छोटी सी बात यहाँ पे जरूर अपने को देखना पड़ेगी. हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट सी है. बोले ऑप्शन मैच नहीं करेंगे सर, ऐसा वैसा. एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है और वो देखना पड़ेगी कि बोले सर इसको डिवाइड कर लो. हाँ, डिवाइड कर लेंगे. log 3 माइनस log 4, छोटी सी बात है. log 3 माइनस log 4, ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्योंकि आप जानते हो कि इनइक्वालिटी में अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्सेस, राइट?
अब आपने बहुत तेजी से कर दिया कि बोले -1 अपॉन दिस, लेकिन यू हैव टू टेक केयर। log 3 विद बेस 10 और log 4 विद बेस 10 आप बहुत ठीक ढंग से जानते हो लॉगरिथमिक कर्व्स को। log 3 की वैल्यू log 4 की वैल्यू से छोटी होगी। इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, log विद बेस 10 की बात करोगे, दैट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। So log 3 minus log 4 is a negative value. समझ रहे हो क्या? Since it is a negative value, you want to divide it? Yes, you can, but do take care. Inequality reverse करिए उस केस में. So it is going to be n greater than equals to -1 upon, है ना, नेगेटिव नंबर से आपने डिवाइड किया और फिर अरेंज कर लीजिए, माइनस साइन कॉमन लेके जैसा रिजल्ट में पूछा गया उस फॉर्म में देख लीजिए, विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, होगा कोई ऑप्शन मैच? देन n इज ग्रेटर देन, तो सम ऑप्शन वुड बी देयर, डेफिनेटली वुड बी देयर। -1 साइन को यहाँ से भी आपने माइनस कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से भी, तो 1 अपॉन log 4 माइनस log 3, दैट इज देयर, ए ऑप्शन इज देयर। ठीक है ना? Again we take a previous year JEE question. In the year 2009 it was asked. The question is, actually 3 questions are based on that. A fair die is tossed repeatedly until a 6 is obtained. A fair die is tossed repeatedly until a 6 is obtained. कब तक? जब तक कि 6 नहीं आता। Let x denote the number of tosses required. 3 सवाल हैं और तीनों देखिएगा और बड़ी आसानी से बनता है मामला। Probability of x equals to 3. A fair die is tossed repeatedly until a 6 is obtained. X denote the number of tosses required. X equals to 3 का मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ? 3 tosses are required. और टॉस कब तक कर रहे हो? जब तक कि 6 नहीं आता। तो 3 tosses are required. That means x equals to 3 मतलब थर्ड टॉस में 6 आए। इसका मतलब पहले और दूसरे टॉस में 6 नहीं आए, यही हुआ। और एट द सेम टाइम एवरी टाइम यू थ्रो अ डाइस, probability of getting a 6 is 1/6 and not getting a 6 is 5/6. उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। It's an events are clearly in independent nature. Clear है क्या? तो every time you are p x equals to 3, that means p of, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 कंजुगेट 6 कंप्लीमेंट एंड देन 6 बार इंटरसेक्शन 6 बार इंटरसेक्शन 6, ऐसा लिख सकते हैं। दैट इज नथिंग बट, डायरेक्टली बात करेंगे हम, 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 एंड विच इज नथिंग बट 25/216, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है ना? Probability that x is greater than equals to 3. x is greater than equals to 3, इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 तरीके से। कैसे 2 तरीके? एक हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू व्हाट? अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। हमें नहीं पता कब आ रहा है 6। या फिर इसको कर सकते हैं 1 माइनस x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 0 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। समझ रहे हो क्या? रिजल्ट तो सेम रहेगा, तय बात है। हाँ, x इक्वल्स टू 0 भी इसलिए क्योंकि हो सकता है एक भी 0 की वैल्यू शायद नहीं आएगी कुछ, तो ठीक है, अच्छी बात है कि x इक्वल्स टू 0 का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो ठीक है, ठीक बोल रहे हैं आप। x इक्वल्स टू 0 का मतलब नहीं कि 0 टॉसेस, ठीक है, वो तो रहेगा ही नहीं वहां पर। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं, 1 माइनस ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ p ऑफ x equals to 1, x equals to 0 means 0 tosses, that is of no use, so it is 1 minus x equals to 2, that means 2 tosses are required, 2 tosses are required, that means पहले टॉस में 6 नहीं आएगा, तभी तो फिर सेकेंड टॉस में 6 आएगा। 5/6 into 1/6, राइट, माइनस ऑफ
फर्स्ट टॉस में ही 6 आ जाए भैया, 1/6, राइट। या फिर अल्टरनेटिवली आप तो सीख रहे हैं, तो P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4। देख लीजिएगा दोस्तों, अप टू व्हाट टाइम्स वी डू नॉट नो, अप टू व्हाट टाइम्स। x इक्वल टू 3 बोर्ड पे देखिए प्लीज, x इक्वल टू 3 दैट इज ऑलरेडी देयर इन फ्रंट ऑफ यू। पहली 2 बार में 6 नहीं आना और तीसरी बार में 6 आना, दैट इज व्हाट 5/6 whole square into 1/6 plus x equals to 4. What does it mean? First 3 times 6 नहीं आ रहा है और फिर 4 टाइम में 6 आए, 5/6 raised to power 3 into 1/6. Next one 5/6 raised to power 4 into 1/6 and up to infinite number of times, and it is nothing but a upon 1 minus r, sum of infinite number of terms of GP। आ रहा है समझ में? यूज कर लीजिएगा a upon 1 minus r। a is the first term which is there in front of you, common ratio, term और preceding term का ratio, which is nothing but what is the common difference here, sorry common ratio here, what is the common ratio here, 5/6, term और preceding term का ratio। easily you are getting the result in fact। And the third one, P of x greater than equals to 6 given x is greater than 3, conditional probability that x is greater than equals to 6 given x is greater than 3। देखिएगा, P of x greater than equals to 6 intersection x is greater than 3, that is the meaning of the conditional probability, divided by P of x greater than 3। आ रहा है क्या समझ में? It is nothing but common of the two, what you are going to write here, P of x greater than equals to 6 divided by P of x greater than 3। How you are going to solve these two values? x greater than equals to 6 and x greater than 3 कैसे कैलकुलेट करोगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की जीपी, और क्या है ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा है, इफ यू हैव टू कैलकुलेट x ग्रेटर देन 3, ये टर्म छोड़ देना यार भाई, और क्या है, बाकी तो सेम कार्यक्रम रहेगा। x ग्रेटर देन 3 के केस में ओनली दिस टर्म इज नॉट देयर बट रिमेनिंग विल रिमेन सेम, दैट इज गोइंग टू बी देयर इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जीपी। x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा है वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लिख दोगे, 6 7 और अप टू इनफाइनाइट, जस्ट पुट द वैल्यू a अपॉन 1 माइनस r। ये तो समझ में आया ना आपको? अंटिल ना जब तक 6 नहीं आ रहा तब तक आप डाई को टॉस कर रहे हो, तो x इक्वल टू 3 दैट मीन्स थर्ड टाइम में 6 का आना, दैट मीन्स फर्स्ट 2 टाइम में नहीं आना। x इक्वल टू 6 मतलब 6th थ्रो में 6 का आना, फर्स्ट 5 टाइम्स नहीं आना, दैट मीन्स 5/6 टू द पावर 5 इंटू 1/6। अब ये 3 सवाल जेई में पूछे गए और तीनों आसान थे, तो यू आर गेटिंग 12। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन डायरेक्ट जेई में आया तो टफ होगा ऐसा करके, ऐसा कुछ नहीं। दैट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। यूजुअली बच्चे थोड़ा सा डरते हैं प्रोबेबिलिटी पीएनसी के नाम से, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक तो ये भी पॉइंट बहुत जरूरी है कि अपने दिमाग में कोई पर्टिकुलर टॉपिक का हवा नहीं बनाए कि ये हमसे नहीं बनता। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कैसा आया उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। तो आपको कहने से प्रोबेबिलिटी टफ आता नहीं, टफ क्या, क्वेश्चन आसान आया तो ये इसको आसान टफ कुछ भी कहें, बन रहा है ना आसान। और आपको जो टॉपिक बहुत आसान लगता है उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, दोनों ही बातें। तो अपने दिमाग में कोई भी प्री ऑक्यूपेशन बनाना ठीक नहीं होता कभी भी। So in the previous class we were discussing about the probability distribution. So अभी हम यहाँ पर बात करते हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन लेते हैं, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट अ पैक ऑफ कार्ड्स इज देयर एंड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। अ पैक ऑफ कार्ड्स इज देयर, अजीत भाई, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट, है ना। विथ रिप्लेसमेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। आपने कार्ड निकाला देखा और रख दिया, कार्ड निकाला देखा रख दिया, सिंपल स्पेस इज ऑफ 52 विल रिमेन ऑफ 52। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है देन इट इज गोइंग टू बी अ मल्टीप्लिकेशन रूल, है ना। हमने प्रीवियस क्लास में दोनों बात करी थी।
So two cards are drawn one by one with replacement, and you have to write the probability distribution. You have to write probability distribution of number of kings. तो नंबर ऑफ किंग्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है. तो नंबर ऑफ किंग्स में एक सीधी सी बात है, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज. रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज जो हो सकती हैं 0, 1 और 2. एक भी किंग का ना आना, दोनों किंग हो और एक किंग हो. प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था, तो अलग अलग केस बना के आपको बता दिया था. अब की बार हम डायरेक्टली कैन वी यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हियर? यस वी कैन. क्यों? क्योंकि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इन नेचर. किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, 4c1 डिवाइडेड बाय 52c1, और ना है उस बात की प्रोबेबिलिटी 48c1 डिवाइडेड बाय 52c1, दैट रिमेन्स सेम. समझ रहे हो ना? तो अगर मैं P से डिनोट कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, दैट इज क्लियरली 4c1 डिवाइडेड बाय 52c1, एंड Q नॉट गेटिंग अ किंग 48/52. सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है तो रैंडम वेरिएबल की तीन वैल्यूज, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2. ये तीन वैल्यूज हैं. x इक्वल्स टू 0 डिनोट्स एक भी किंग का ना आना, है ना. दो कार्ड आपने ड्रॉ किए, 1 by 1 है, ठीक है, बट 1 by 1 है विथ रिप्लेसमेंट है, ठीक है ना. तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 0, 2c0, एक भी किंग का नहीं आना, 4/52 रेज़ टू पावर 0 एंड 48/52 रेज़ टू पावर 2. पहले हमने कैसे देखा था इसको? पहली बार में किंग का ना आना, दूसरी बार में भी किंग का ना आना, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया था. लेकिन ये कई क्वेश्चंस में बहुत यूजफुल रहेगा. जब कई बार 3-3, 4-4 केसेस बनेंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दोगे x इक्वल्स टू 1, एक किंग का आना 2c1 और दोनों किंग आ जाए. दैट इज द अप्रोच. अब क्या होगा, ये कार्यक्रम बहुत सस्ता पड़ेगा. कब? अब मान लीजिए 3 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट. अभी तो आपने जो बोले सर पहले भी किया था, तब इतनी कोई दिक्कत नहीं थी. अब मान लीजिए 2 कार्ड्स की जगह 3 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 एंड विथ रिप्लेसमेंट एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स. जो प्रीवियस अप्रोच थी, इफ यू रिमेंबर, x इक्वल्स टू 1 में हमने 2 केस बनाए थे. कौन से 2 केस थे? पहला कार्ड किंग नहीं हो, दूसरा किंग हो, प्लस पहला किंग हो, दूसरा किंग नहीं हो. ये 2 केस थे. यहाँ पे डायरेक्ट हमने एक लिखा है. 2 कार्ड्स में तो बात आसानी से हो गई. इफ आई टॉक अबाउट 3 कार्ड्स, कि 3 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट. विथ रिप्लेसमेंट इज मस्ट. और आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ किंग्स, तो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3. अब आप जरा सोचो यहाँ पर कि x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, 2 की जगह 3 कर दिए मैंने. x इक्वल्स टू 0 मतलब एक भी कार्ड किंग नहीं होना. 3c0, एक भी किंग नहीं है. 1/13 रेज़ टू पावर 0 एंड 48/52 क्या लिख सकता हूं मैं? 12/13 रेज़ टू पावर. तीनों ही जो पत्ते हैं वो किंग्स नहीं हैं. ये तो आप पहले भी बना लेते कि पहला कार्ड किंग नहीं, इंटरसेक्शन दूसरा कार्ड किंग नहीं, और तीसरा कार्ड इंटरसेक्शन किंग नहीं, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन. लेकिन एक किंग के केस में कितने केस बनते? 3 केस बनते वहां पर. आप फर्स्ट कार्ड किंग, सेकंड थर्ड नहीं, फर्स्ट नहीं थर्ड नहीं, सेकंड है, सेकंड थर्ड नहीं. हम यहाँ पे डायरेक्ट बात करेंगे यार. अब इस बात को समझ सकते हो तो समझो कि काम आपका आसान हो गया. यू नीड नॉट टू राइट 3 केसेस एंड 8 देयर. बट हाँ, ऐसा करना पड़ेगा अगर विथ रिप्लेसमेंट की जगह विदाउट रिप्लेसमेंट है तब. क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट में यू कैन नॉट अप्लाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. द रीजन इज
your sample space is getting changed. Probability of getting a king, probability of not getting a king will change when replacement is not done. समझ रहे हो क्या? तो 3c1 1 by 13 raised to power 1, 12 by 13 raised to power 2, 3c2 1 by 13 raised to power 2, 12 by 13 raised to power 1, and 3c3 1 by 13 raised to power 3, 12 by 13 raised to power 0. ठीक है? Now the question is, find the probability distribution of number of doublets in 4th rows of a pair of dice. Probability distribution required है. अब ये नहीं कहेगा वो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या आपको डिसाइड करना है कि क्या आप अप्लाई कर भी सकते हो या नहीं, क्या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें एप्लीकेबल है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना होगा. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स, नंबर ऑफ डबलेट्स in 4th rows of pair of dice. ठीक, probability distribution of number of doublets 4th rows. पहली बात तो डबलेट्स का मतलब बता दें आपको, वो क्लियर हो जाना चाहिए. अब क्या डबलेट्स का मतलब भी बताना ठीक नहीं लगता. पेयर ऑफ डाइस, 2 डाइस आप रोल कर रहे हो और 2 डाइस रोल करने पर 4 टाइम्स and getting probability of getting a doublets 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, and that probability is, उसको अगर मैं P से डिनोट करता हूं तो probability of getting a doublets जब आपने पेयर ऑफ डाइस को रोल किया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, these are the 6 cases which are there in favor, is to 36 is the sample space and is nothing but 1 by 6, and probability of not getting a doublets is Q, which is clearly going to be 5 by 6. डबलेट्स आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1 by 6, ना है उस बात की प्रोबेबिलिटी 5 by 6. ठीक है? अब आपने क्या किया, 4th rows आर देयर, 4 बार वो पेयर ऑफ डाइस को रोल किया गया, राइट? क्या व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल विच इट कैन टेक? रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 4th rows आर देयर, 0 0 मतलब एक बार भी डबलेट्स का नहीं आना, 4th रो में एक बार भी डबलेट ना आए. 1 एक बार, 2 3 एंड देन 4, ऑल 4 टाइम्स डबलेट ऑकर. अगर आप इसको यूजुअल प्रोसीजर से लिखने की कोशिश करोगे तो वो काफ़ी लेंदी होगा, जो हम प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे. लेकिन विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा काम बहुत आसानी से होगा. x इक्वल्स टू 0 1 2 3 and 4. If I say x equals to 0, 4th rows are there, एक बार भी डबलेट्स नहीं आना, 4c0, 4c0, then what? एक बार भी नहीं आना, 1 by 6 0, 5 by 6. नहीं, क्यों नहीं समझ में आएगा? जरूर आएगा. एक बार डबलेट्स का आना, 4c1 1 by 6 raised to power 1, 5 by 6 का क्यूब, 4c2 right, and then 4c4 that is the probability distribution, and you have written it very easily. ज़्यादा कहीं लोड ही नहीं था. क्यों? The reason is बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हमने यहाँ पे अप्लाई कर पाए. लेकिन ये ध्यान आपको रखना है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब एप्लीकेबल है ना? दो दैट इज एप्लीकेबल फॉर बर्नौलीज ट्रायल्स, एंड व्हाट आर दोज बर्नौलीज ट्रायल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है?